آج کا مضمون ہے خدا کی بادشاہی کی تکمیل۔ عزیز ناظرین، کتاب مقدس کی تعلیمات پر مبنی پروگرام بھرپور زندگی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند خدا پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، نر ناری پیدا کیا اور ان کو برکت دی اور کہا، پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو اور زمین پر حکمرانی کرو۔ اس طرح انسان کے ذریعے خدا زمین پر حکمرانی کرتا تھا، لیکن انسان کی نافرمانی سے جلد ہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ خدا زمین پر اپنی ایسی بادشاہی قائم کرنا چاہتا تھا جو کبھی ختم نہ ہو بلکہ ہمیشہ قائم رہے۔ ہم نے آپ کو ہزاروں سالوں پر محیط ایک لمبی کہانی سنائی ہے کہ خدا اپنی بادشاہی قائم کرنے کے لیے کس طرح مسلسل کام کرتا رہا، اور کتاب مقدس کی پیش گوئیوں کے مطابق مسیح بادشاہ کی اس دنیا میں آمد ہوئی، اور اس کی تعلیم آسمان کی بادشاہی کے سنہرے اصول ہے، اور اس کے معجزات ایک بادشاہ کی حیثیت سے اس کے اختیارات کا اظہار ہے۔ کتاب مقدس کے مطابق خدا کو اپنی بادشاہی قائم کرنے کے لیے مسیح بادشاہ کی موت ضروری تھی، تاکہ مسیح بادشاہ اپنے لوگوں کو ابلیس کی غلامی سے رہائی دے کر اپنی بادشاہی میں لے جائے۔ تو آئیں ہم اپنے مضمون کا آغاز کرتے ہیں۔ یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ یروشلم کو جاتے ہوئے راستہ میں تھے، اور یسوع ان کے آگے آگے جا رہا تھا، اور وہ ان کو وہ باتیں بتانے لگا جو اس پر آنے والی تھیں۔ یسوع نے ان سے کہا، دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں، اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیہوں کے ہاتھوں تو کھٹائے گا، قتل کیا جائے گا اور 3 دن کے بعد جی اٹھے گا۔ وہ سفر کرتے کرتے یروشلم پہنچے، اور لوگوں نے ان کا بادشاہ کے طور پر والہانہ استقبال کیا۔ ہم انجیل میں اس کا حال پڑھتے ہیں۔ جب وہ یروشلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیت فگا اور بیتنیہ کے پاس آئے تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا تمہیں ملے گا، جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ۔ اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ فی الفور اسے یہاں بھیج دے گا۔ پس وہ گئے اور بچے کو دروازے کے نزدیک باہر چوک میں بندھا ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے۔ مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے ان سے کہا، یہ کیا کرتے ہو کہ گدھی کا بچہ کھولتے ہو؟ انہوں نے جیسا یسوع نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا، اور انہوں نے ان کو جانے دیا۔ پس وہ گدھی کے بچے کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے، اور وہ اس پر سوار ہو گیا۔ اور بہت لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھا دیے، اور انہیں کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دی، اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے جاتے تھے، ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ لوگ بلند آواز سے نعرے لگا رہے تھے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے۔ اصل میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یسوع داؤد کا بیٹا مسیح ہے، اور وہ بادشاہ ہے اور وہ آ رہا ہے۔ اور یہودی لیڈروں کو یہ بات بہت ناگوار گزری، لیکن یہ زکریا نبی کی پیش گوئی کی تکمیل تھی۔ زکریا نبی کے صحیفے میں یوں لکھا ہے،
ए बिनते सयूम, तू नहायत शादमा हो। ए दुख्तर यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। यरूशलेम पहुंचकर यीशु ने एक ऐसा बड़ा काम किया जिससे यहूदी लीडर परेशान हो गए। हम अंजील में इसके बारे में यूं पढ़ते हैं। फिर वो यरूशलेम में आए और यीशु हैकल में दाखिल होकर उनको जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे बाहर निकालने लगा और सराफों के तख्तों और कबूतर फरोशों की चौकियों को उल्ट दिया। और उसने किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने ना दिया। और अपनी तालीम में उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा? मगर तुमने उसे डाकुओं की खूह बना दिया है। और सरदार काहिन और फकीह ये सुनकर उसके हलाक करने का मौका ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसकी तालीम से हैरान थे। बनी इस्राएल कौम सदियों से मसीह बादशाह की आमद का इंतजार कर रहे थे कि मसीह बादशाह आएगा तो उनमें खुशहाली आएगी और उनको आराम मिलेगा। लेकिन जब अचानक मसीह हैकल में आ मौजूद हुआ और उसने हैकल की बेहरुमती करने पर उनको डांटा, तो उन्होंने अपने बादशाह पर हमला कर दिया और उसे कत्ल कर डाला। ये एक बहुत बड़ा जुर्म था जिसकी सजा आइंदा पूरी कौम को मिली। ये ईद फसह का मौका था और यीशु ने अपने शिगिर्दों के साथ यरूशलेम में फसह का खाना खाया। यीशु के आखिरी खाने की बात जो अंजील में लिखी है हम वो पढ़ते हैं। ईद फतीर के पहले दिन, यानी जिस रोज फसह को ज़बह किया करते थे, उसके शिगिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने शिगिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ और एक शख्स पानी का घड़ा लिए हुए तुम मिलेगा, उसके पीछे हो लेना और जहाँ वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है मेरा मेहमान खाना जहाँ मैं अपने शिगिर्दों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वो आप तुमको एक बड़ा बाला खाना और रास्ता और तियाब दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करना। बस शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह को तैयार किया। और वो खा ही रहे थे कि उसने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उनको दी और कहा, लो ये मेरा बदन है। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और उनको दिया और उन सबों ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अंगूर का शीरा फिर कभी ना पीऊँगा उस दिन तक कि खुदा की बादशाही में नया ना पीऊँ। फिर गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। यीशु ने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को दी और कहा, ये लो ये मेरा बदन है। यीशु कह रहा था, ये रोटी मेरी मोहब्बत की रोटी है, मेरे दुखों की रोटी है और इससे मैं तुम्हें अबलीस के बंधन से अबदी मखलसी अता करूँगा। फिर उसने शीरे का प्याला लिया और शुक्र करके अपने शागिर्दों को दिया और कहा, ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए बहाया जाता है। यीशु के खून से नया अहद बांधा गया। ये अहद खुदा के फजल का अहद है जिससे हमें गुनाहों से मखलसी मिलती है। फसह का खाना खाने के बाद उन्होंने खुदा की हमद के गीत गाए और इसके बाद जैतून के पहाड़ पर चले गए और गत्समनी बाग में दाखिल हुए। गत्समनी बाग में यीशु ने यूं दुआ की, अंजील में हम पढ़ते हैं। फिर वो एक जगह आए जिसका नाम गत्समनी था और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। और पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर नहायत हैरान और बेकरार होने लगा और उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और ज़मीन पर गिरकर दुआ करने लगा।
कि अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, ऐ बा, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस प्याला को मेरे पास से हटा ले, तो अभी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं, बल्कि जो तू चाहता है वही हो। फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, ऐ शमऊन, तू सोता है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। वो फिर चला गया और वही बात कहकर दुआ की, और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और वो न जानते थे कि उसे क्या जवाब दें। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो, आराम करो, बस वक़्त आ पहुंचा है। देखो, इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाता है। उस वक़्त यीशु अपने सलीबी दुखों और मौत को महसूस कर रहा था। यीशु ने अपनी दिल की गहराइयों से यूँ दुआ की, ऐ बाप, इस प्याला को मेरे पास से हटा ले। यह प्याला इंसानी गुनाह के खिलाफ खुदा के कहर की अलामत था। यह खुदा की अदालत का तस्वर था। उसे खुदा का कहर दिखाई दे रहा था। उसे पाताल, खाई और फना का प्याला दिखाई दे रहा था। लेकिन खुदा तो ज़िंदगी और नूर और मोहब्बत है। इसलिए खुदा से जुदाई नूर और मोहब्बत से जुदाई है। यीशु ने रूहानी तौर पर महसूस किया कि सलीब पर उसकी बाप के साथ लामहदूद जुदाई होगी। यीशु ने सलीबी मौत का मज़ा पहले ही चख लिया था कि उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। लेकिन यीशु ने कहा, ऐ बाप, फिर भी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं, बल्कि जो तू चाहता है वही हो। जब यीशु दुआ कर रहा था तो शागिर्द सो रहे थे। यीशु ने शागिर्दों से कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। यीशु तीसरी बार दुआ करके वापस शागिर्दों के पास आया और उनको सोते पाया कि उनकी आंखें नींद से भरी हुई थीं। यीशु ने शागिर्दों को जगाया और कहा, वक़्त आ पहुंचा है। देखो, इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाता है। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा के साथ एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आ पहुंची, जो सरदार कायनों और बुजुर्गों की तरफ से भेजी गई थी। उन्होंने यीशु को गिरफ्तार किया और सरदार कायन के पास ले गए, जहां पर सब बुजुर्ग और फकीह मौजूद थे। उन्होंने यीशु के खिलाफ बहुत सी झूठी गवाहियां पेश की, लेकिन यीशु ने किसी का जवाब न दिया। फिर सरदार कायन ने पूछा, क्या तू उस स्तुदा का बेटा मसीह है? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ। तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक के दानी तरफ बैठे और आसमान पर बादलों के साथ आते देखोगे। सरदार कायन ने अपने कपड़े फाड़े और कहा, तुमने कुफर सुना है, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने फतवा दिया कि वो कत्ल के लायक है। फिर बाज लोग उस पर थूकने, उसका मुंह ढांपने और उसे मुक्के मारने लगे। लेकिन यहूदी कौंसिल के पास मौत की सजा का इख्तियार नहीं था। इसलिए यीशु को रोमी गवर्नर पिलातुस के सामने पेश किया गया। रोमी गवर्नर पिलातुस के सामने यीशु की पेशी और उसकी सलीबी मौत का हाल आप अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।